حافظ عبدالعظیم صاحب کر رہے ہیں. Generations of Islamic scholars belonging to Deoband School of Thought in India. It was founded in 1919 by a group of Deobandi scholars. Islamic scholar Hazrat Maulana Arshad Madni Sahab, the current principal of Darul Uloom Deoband, is the president of Jamiatul Ulama Hind. He believes that India's division in 1947 grew from religious sectarianism among the population of British India and the violence related to it. ہم آپ کا یہاں استقبال کرتے ہیں. ڈاکٹر کاکلکر میڈم کا استقبال جو ہے ڈاکٹر کاکلکر صاحب کا استقبال جو ہے ہمارے سگما ہاسپٹل کے جانب سے غریبوں کو کی جانے والی مدد، آپ کا سوشل ورک، آپ کا یہاں تشریف فرما ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ہمارے قابل ہے میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے میں ہمارے ذمہ دار مصطفیٰ خان صاحب کو بولتا ہوں تشریف لائیں تاکہ ان کا استقبال کیا جا سکے. جو ڈاکٹر لبنا میڈم صاحبہ آپ کا بہت بہت ہم تہذیب سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے تشریف لائے. چلو دوسرا گروپ تھوڑا جناب ابراہیم پٹھان صاحب اور الیاس کرمانی صاحب کے ہاتھوں پی آئی جنسی پولیس اسٹیشن کے پی آئی گیری صاحب، جنسی پولیس اسٹیشن کے پی آئی جناب کیندرے صاحب اور سڈکو پولیس اسٹیشن کے پی آئی جناب گیری صاحب کا یہاں استقبال کیا جا رہا ہے. حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب، مولانا یہ سپاس نامہ اور یہ مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے. مولانا پیچھے ہو جاؤ تھوڑا. اورنگ آباد یونٹ کے ذمہ داران، جمیعت العلماء اورنگ آباد کے یونٹ کے ذمہ داران، میں کارپوریٹر جناب ظفر صاحب، متین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کی ہوئی خدمات کے بھی اعتراف میں عالی جناب کلکٹر صاحب انہیں سپاس نامہ اور مومنٹو پیش کر رہے ہیں. تھوڑا نہیں چلو جناب الیاس کرمانی صاحب، مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کے صدر جناب الیاس کرمانی صاحب اور ڈیلکس پروڈکٹس کے روح رواں عالی جناب اشفاق صاحب کی خدمت میں یہ مومنٹو اور یہ سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے. اب میں کے جی ایم گروپ کے نوجوان والا ہے جن کے یہاں ستکار کیے جانے والے ہیں، انہوں مصطفیٰ خان صاحب انہیں آواز دیں گے. ماجد خان صاحب، عتیق پالوکر،
माजिद खान साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, मुनव्वर सिद्दीकी साहब, शकील पठान साहब, मंसूर अली साहब, ख्वाजा नियाजुद्दीन साहब, आदिल खान साहब, जनाब सलीम साहब, एक 5 मिनट आप तशरीफ रखिए इब्राहिम भाई। अफरोज भाई, अजीम पालोकर ग्रुप, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर हसीब मोहम्मद, डॉक्टर लुबना मैडम, डॉक्टर लुबना मैडम, मिराज खान साहब, रोयला गली, रहते हैं, इनका इस्तेमाल माजिद भाई करेंगे। उम्मीद शाकिर साहब का यहाँ अब मैं हाफिज इकबाल सईद और उनके तमाम यंग ब्रिगेड स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ एशियन ग्रुप के तमाम नौजवानों का यहाँ इस्तेमाल करिए। कलेक्टर साहब के हाथों एशियन ग्रुप का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने कोविड-19 के पेशेंटों को गुसल देके तदफीन तक अपने हाथों से की है। इनके लिए जोरदार तालियां। एशियन ग्रुप औरंगाबाद। चलो दूसरा ग्रुप साहब आज के इस प्रोग्राम के सदर आली जनाब मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब का यहाँ इस्तकबाल करने वाले हैं। आज इस प्रोग्राम के प्रोटोकॉल के खिलाफ चूँकि यहाँ खासदार जनाब भागवत कराड़ साहब भी मौजूद है, हमारे कलेक्टर साहब भी मौजूद है, तमाम डिग्नेटरीज यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आप तमाम सामाईन की इजाज़त से प्रोटोकॉल के खिलाफ आज के हमारे इस जलसे के सदर से दरख्वास्त करता हूँ, मौलाना हमीदुल्लाह कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और हम तमाम की रहनुमाई करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, इज्जत महाब कलेक्टर साहब और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से
تعلق رکھنے والی سماجی، علمی اور مذہبی شخصیات اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، آج کا یہ استقبالیہ پروگرام ان بھائیوں کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے جنہوں نے کووڈ-19 کی اس مہاماری میں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر صرف انسانیت کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ خدمت کسی لالچ، کسی صلہ اور کسی ستائش کے جذبے سے نہیں کی ہے۔ آپ نے ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے درد کو سمجھا، اس بنیاد پر آپ نے خدمت کی ہے اور اس کا صلہ اور اس کا اجر و ثواب آپ صرف اپنے پروردگار سے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی یہ فرض ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے منتظمین کو میں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اس چھوٹے سے حال میں انہوں نے ان چند افراد کو نہیں جمع کیا ہے بلکہ پورے شہر اورنگ آباد کو جمع کر دیا ہے۔ ہر طبقے کی نمائندہ شخصیات، چنندہ اجلاس کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے۔ جمعیت علماء اورنگ آباد نے ان دنوں جو خدمات انجام دی ہیں یا اس سے پہلے جو خدمات انجام دیتی آئی ہے اس کا مختصر سا تذکرہ ہمارے محترم دوست حافظ عبدالعزیز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کیا، اور یہ صرف جمعیت علماء اورنگ آباد کی ہی داستان نہیں ہے۔ پورے ملک میں جمعیت علماء ہند کے کئی کروڑ ممبر ہیں۔ اس موقع پر جو جہاں تھا، جس سے جو بن پڑا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس نے انسانیت کی خدمت کی اور اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر کی۔ اور کیوں نہ کرتے ہمارے قائد محترم جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے جب یہ وبا شروع ہوئی اور لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا اور مزدور طبقہ، غریب لوگ اپنے سروں پر اپنا سامان اٹھائے ہوئے، خواتین اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے پیدل سینکڑوں میل کا سفر کر رہے تھے، اس وقت ہمارے صدر محترم نے یہ اعلان کیا کہ جمعیت علماء جو عوامی چندے سے چلنے والی ایک جماعت ہے، فرمایا کہ میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر جمعیت علماء کی کوئی مدد نہ کی جائے، جمعیت علماء کو کوئی چندہ نہ دیا جائے، بلکہ ان پریشان حال لوگوں کی مدد کی جائے اور ان کا ہاتھ پکڑا جائے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ حضرت کے اس اعلان کا ہی نتیجہ تھا کہ جمعیت علماء کے خدام ہر جگہ سامنے آئے، جمعیت علماء کے خدام اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات سامنے آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ بمبئی سے
جب لوگ نقل مکانی کر رہے تھے اور تھانہ سے لے کر کے کسارا تک اور اس کے آگے تک سڑک پر پیدل چلنے کی جگہ نہیں تھی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے لوگ، اس وقت ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے جگہ جگہ ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے پانی کا انتظام کیا، ان کے آرام کا انتظام کیا، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جمعیت علماء مہاراشٹر نے اس موقع پر پورے صوبے میں اپنی تمام یونٹوں کو یہ ہدایات جاری کی کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کیجیے۔ یہ موقع مذہب دیکھنے کا نہیں ہے، دین دیکھنے کا نہیں ہے، دھرم دیکھنے کا نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر آپ کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دین کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، خونی رشتے سے دنیا کے تمام انسان بھائی بھائی۔ ابھی ہمارے حافظ اقبال انصاری صاحب نے قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور ان کے درمیان خونی رشتہ ہے، اور اس خونی رشتے سے دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس جذبے کے تحت جمعیت علماء مہاراشٹر نے پورے صوبے میں کام کیا، اور ہمارے دفتر کو اور ہمارے آفس کو جو اطلاعات ملی ہیں، تقریباً 25 کروڑ روپے ہمارے ہماری جمعیت کے احباب نے اپنے پریشان حال بھائیوں کی خدمت پر صرف کیا۔ اور ہمارے حافظ اقبال صاحب نے ابھی جو بات کہی کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں، یہ الیکشن نہیں لڑتی، اور نہ الیکشن میں کسی کی تائید کرتی ہے، اور نہ الیکشن میں کسی کی موافقت یا مخالفت کرتی ہے، بلکہ جمعیت علماء جو کچھ بھی کرتی ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جب یہ ملک تقسیم ہوا، اور آپ یہ بھی سمجھ لیجیے ہندوستان کے اندر جمعیت علماء وہ واحد تنظیم تھی جو ملک کی تقسیم کی مخالفت کر رہی تھی، جو مسلم لیگ کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑی تھی اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر ملک تقسیم ہو گیا تو اس سے صرف ملک کو ہی نقصان نہیں پہنچے گا، اے لوگوں جو تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہو، سب سے زیادہ نقصان تمہیں پہنچے گا۔ گاندھی جی سے جمعیت علماء نے وعدے لیے تھے کہ وہ تقسیم کے پیپر پر دستخط نہیں کریں گے۔ جواہر لال، موتی لال، ان تمام لوگوں کو ہموار کیا تھا، لیکن پھر جمعیت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاندھی جی نے بھی ملک کی تقسیم کے پیپر پر دستخط کر دی۔ اس لیے جمعیت علماء آج سینہ ٹھوک کر یہ کہتی ہے کہ ملک کی تقسیم جس نے کی یا کروائی وہ جانے۔ جمعیت علماء اس وقت بھی ملک کی تقسیم کے مخالف تھی اور آج بھی ہے، وہ اپنے نظریے پر آج بھی قائم ہے۔ تقسیم کے نتیجے میں جب دلی کے اندر قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور انسانی خون دلی کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگا، اس موقع پر اس وقت کے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی دلی کی گلیوں میں مارے پھرتے تھے اور زخمیوں کو اور جو بے سہارا تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے یہ دن کس طرح گزارے اور ان کی ان خدمات کا کس طرح اعتراف کیا گیا۔ ہمارے ملک میں بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مسلمان جانتا ہے، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ ہے۔ ایک دن ان کی مجلس میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا تذکرہ آ گیا
किसी ने कहा कि हजरत वो तो कांग्रेसी आदमी है, उसकी बात क्यों की जाए। हजरत को गुस्सा आ गया और फरमाया कि मैं हिफ्जुर रहमान से एक सौदा करना चाहता हूं। हिफ्जुर रहमान मेरी जिंदगी की सारी इबादतें ले ले, सारे मुजाहिदात ले ले, सारी रियाजतें ले ले, और उसके बदले में मुझे अपनी जिंदगी की वो रातें और वो दिन दे दे जब मुल्क की तकसीम के मौके पर उसने दिल्ली की गली कूचों में लोगों की मदद करते हुए गुजारी है, तो मैं ये समझूंगा कि ये सौदा मेरे लिए सस्ता है। जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिर ने मुल्क की जो खिदमत की है, आप जानते हैं, अभी तज़किरा आया आपके सामने कि जमीयत उलमा की उम्र 100 साल हो चुकी है। 1919 में ये जमात कायम हुई और मुल्क की आजादी के लिए इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गांधी जी के साथ और दूसरे मुजाहिदीन आजादी के साथ। अगले महाज पर खड़े होकर के इसने कुर्बानियां दी। जमीयत उलमा के कितने अकाबिर शहीद हुए मुल्क की आजादी के लिए, लेकिन जब ये मुल्क आजाद होने के साथ तकसीम हो गया तो जमीयत उलमा ने अपने आप को इलेक्शन की सियासत से अलग कर लिया। आज ही मुझसे मेरे बाल दोस्तों ने, मीडिया के लोगों ने यह सवाल किया कि आखिर जमीयत उलमा ने अपने आप को सियासत से अलग क्यों किया। मैं ये कहता हूं कि आज जमीयत उलमा की इस मुल्क में जो पोजीशन है, मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों की नजर में उसकी कदर है। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, यहां तक कि वो आरएसएस के लोग हों, वो मोहन भागवत जी हो, कोई भी हो, सबकी नजर में जमीयत उलमा का एक मकाम है, उसकी एक कदर कीमत है। और वो इसी बुनियाद पर कि जमीयत उलमा कोई सियासी पार्टी नहीं है, वो इलेक्शन में फायदे के लिए कोई काम नहीं करती है, वो तो खालिस अल्लाह की रजा के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए काम करती है। इसलिए जहां जमीयत उलमा का नाम आता है, एतराफ खिदमत के तौर पर सबकी गर्दनें झुक जाती हैं। अगर जमीयत उलमा कोई सियासी पार्टी बन गई होती तो आज जमीयत उलमा का भी वही हाल होता जो इस मुल्क में दूसरी मुस्लिम सियासी पार्टियों का है। लेकिन जमीयत उलमा आज हर जगह कद्र की निगाह से देखी जाती है और एहतराम की निगाह से देखी जाती है, इसलिए कि इस दुनिया में वो कोई काम अपने फायदे के लिए नहीं करती, बल्कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए करती है। उसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अल्लाह ताला कहेगा, उससे कहेगा, ऐ फुला, मैं बीमार था, तू मेरी आयादत के लिए नहीं आया। ऐ फुला, मुझे कपड़े की जरूरत थी, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह, आप तो हर तरह की जरूरतों से बेनियाज हैं। आप और भूख, आप और प्यास, आप और कपड़ा, या क्या फरमा रहे हैं? तो इरशाद होगा, मेरे बंदे, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी आयादत के लिए आता तो मुझे वहां पाता। मेरे फला बंदे को कपड़े की जरूरत थी, वो नंगा था, अगर तू उसकी मदद के लिए आता तो तू मुझे वहां पाता। मेरा फला बंदा भूखा और प्यासा था, अगर तू उसकी मदद के लिए आता तो तू मुझे वहां पाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद को सामने रख करके जमीयत उलमा पूरे मुल्क में काम कर रही है, इंसानियत की खिदमत का काम कर रही है। और अब तक जमीयत उलमा ने जो कुछ किया है, कभी उसने मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं की। हम घर बनाते हैं तो जो जरूरतमंद होता है सबके लिए बनाते हैं। हम मुसलमानों के लिए बनाते हैं तो हिंदू भाइयों के लिए भी बनाते हैं। हम अपने ईसाई भाइयों के लिए भी बनाते हैं।
जहां भी हम काम करते हैं, अभी केरला की बात आई, वहां भी हमने सैकड़ों मकानात बनाए। अभी कोल्हापुर और सांगली में जो पिछले साल सैलाब आया था, सैकड़ों मकानात वहां बन रहे हैं। बिहार में जो मकानात बने, कई 100 मकानात, वहां भी हमने इसी तरह किया। हर एक को हमने उसमें हिस्सा दिया। तो जमीयत उलमा इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद उसके सामने आता है कि इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम दुनिया वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। वाहिर दावाना। शख्सियत मौलाना हनीमुल्लाह साहब कासमी, वैसे ही तंजीमें जमीयत उलमा के नाज़िम तंजीम जनाब मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब, शूरा के रुकन और थाना के जो है सदर और थाना जिला के जनरल सेक्रेटरी, कई ओहदे हैं उनके पास। ऐसे बुजुर्ग शख्सियत हाफिज आरिफ साहब अंसारी, मोहम्मद आरिफ साहब अंसारी, कलेक्टर साहब जनाब सुनील चौहान साहब, जनाब खादर करार साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्त केंद्र सर, पीआई गिरी सर, डॉक्टर मैडम, मेरे दोस्त अब्दुल कदीर साहब, इब्राहिम पठान साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्त मुफ्ती कलीम बेग साहब, सिद्दीकी साहब, वाजिद साहब आदि और अंसारी साहब, और मैं सलीम भाई के बाजू में बैठे हुए पटेल साहब, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत उलमा शहर उलमा की जानिब से, और सभी सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, माँ बहनों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जमीयत उलमा अरशद मदनी जनाब मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकत उनकी क़यादत में पूरे मुल्क में ये खिदमत अंजाम दे रही है। चाहे किसी पर जुल्म हो, चाहे कोई मजलूम हो, दोनों की भी मदद करती है। जमीयत उलमा औरंगाबाद उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए और महाराष्ट्र जमीयत की क़यादत में मराठवाड़ा सदर मुफ्ती कलीम साहब और हमारे जिम्मेदारान कारी अब्दुल रशीद साहब, इन सब की निगरानी में जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद का क़याम पिछले साल ही शहर का जिला से अलग किया गया। मैं उसकी 2 मिनट में आपके सामने रिपोर्ट पेश करता हूँ और आज के प्रोग्राम के गर्ज और मकसद उसका बयान करना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, जिन हजरात ने, जिन लोगों ने, जो अहले खैर उन्होंने, सोशल वर्कर ने, ग्रुप्स ने, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन हजरात ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, साफ सफाई काम करने वालों ने, पानी बिजली का इंतजाम संभालने वालों ने जो खिदमत अंजाम दी है, उसका एहसान तो हम नहीं दे सकते। कुत्ता परिंदा भी बाहर कर नहीं मार सकता था। ऐसी हालत में रात बेरात को खाना बनाकर उनके दरवाजों तक पहुंचाया गया। उन नौजवानों को, मैं मेरे जमीयत की मेरी पूरी टीम को पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सच तो ये था कि हमारी जमीयत का कोई इस्तेमाल कर ले। हमारी जमीयत के जिम्मेदारान रात रात भर जागे हैं। पैदा गया है कोई, वहां डिपार्टमेंट के लोगों ने जो कर्फ्यू लगा था, वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। अंदर से फोन आ रहा है कि हमारे पास खाने को नहीं है। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जाने से 4,500 किट्स किराना के तकसीम किए गए, जिसमें तकरीबन 15 से 20 दिन का किराना सामान था। 200 लोगों को नकद रकम दी गई। 10 यानी कि 1,000 लोगों को 3 महीने तक कंटिन्यू खाना बनाकर रोज पहुंचाया गया। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से कोल्हापुर में जो बाढ़ आई थी, कश्मीर में जो सैलाब आया, औरंगाबाद से वहां पर रकम भेजी गई। केरला में जो सैलाब आया, औरंगाबाद से वहां पर बगैर किसी तरफी के केरला में एक ईसाई बहन कोई, उसका एक अपाहिज बेटा है और बूढ़ी है, उसका घर चले गया था। उसको जमीयत उलमा ने घर बना के चाबी उसके हाथ में दी, 4 लाख रुपए का। मौलाना बताएंगे। बिहार के अंदर बाढ़ आई, औरंगाबाद से जमीयत उलमा ने मदद पहुंचाने की कोशिश की। औरंगाबाद में फसाद हुआ, वो हमारे औरंगाबाद के लिए एक दाग था।
हमारे जो ऑफिसर्स आते हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि नाकानी हो जाती है, जिसमें औरंगाबाद में एक फसाद था। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से यहाँ बगैर किसी तफरीक के दोनों समाज के लोगों को 25,000 से 50,000 तक के हम लोगों ने तकसीम की है। जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद हर मजलूम मदद के लिए, मजलूम की मदद के लिए खड़े रहती है, चाहे किसी मदद का हो। मैं अभी बहुत लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप लोग को कीमती वक्त है, आप जो लोग बैठे हुए हैं ये बहुत कीमती है, इनका वक्त भी कीमती है। मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ इस बात के साथ कि आप लोग आए, हम लोगों का प्रोग्राम को कामयाबी के रास्ते पर लाए, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। जिन लोगों ने ताउन किया है मैं उनका नाम अगर लूँ, मुझे कहा गया है कि सिर्फ इतना बोलिए कि इन्होंने खिदमत की है, ये मत बोलिए कि मैंने कितनी खिदमत किया। जैसे हमारे बहुत सारे सत्य दोस्त हैं, हमारे सलीम भाई है, मैंने फोन किया, उन्होंने 200 किट्स के पैसे भेज दिया अकाउंट में। मेरे दोस्त है सिद्दीक भाई, उनको मैंने गुजारिश की, उन्होंने भेज दिए। कई लोग हैं जिनके मैं नाम आपको इंफरादी नहीं ले सकता हूँ। अल्लाह ताला उनके माल में बरकत दे, उनके जान में बरकत दे और उनकी हिम्मत अफजाई करे। आप लोगों ने जो काम किया, खतरनाक टाइम में आपकी हिम्मत आगे बढ़े और आप अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि इसी तरह से खिदमत खल्क और इंसानियत की बुनियाद पर काम करते रहे और हमारे शहर में एकता और अखंडता बढ़ते रहे और तफर्रुक़ात कतई तौर पर खत्म हो जाए। बात अल्हम्दुलिल्लाह। Propounded a theological basis for its nationalistic philosophy. The thesis is that Muslims and non-Muslims have entered upon a mutual contract in India since independence to establish secular state. Jamiyat has limited itself to social reforms and rehabilitation of the right affected, areas affected by natural calamities, etc. The Jamiatul इस प्रोग्राम के प्रोटोकॉल के खिलाफ, चूँकि यहाँ खासदार जनाब भागवत कराड़ साहब भी मौजूद है, हमारे कलेक्टर साहब भी मौजूद है, तमाम डिग्नेटरीज यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आप तमाम सामाईन की इजाज़त से प्रोटोकॉल के खिलाफ आज के हमारे जलसे के सदर से दरख्वास्त करता हूँ, मौलाना हमीदुल्लाह कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। जिंदगी में, जमात की जिंदगी में और कौम की जिंदगी में हमेशा चढ़ उतार का वक्त आता है, और जब जिंदगी गुजारते गुजारते ऐसा भी वक्त आता है जो मुश्किलों के सामने जाने के लिए हमारे सामने एक ऐसा पैगाम लेकर आता है जो हमको मुश्किल के लिए खड़ा कर देता है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमको मुश्किलों में डालने के लिए इसलिए खड़ा किया ताकि हम जिंदगी के रुख को हम सही कर पाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी आफत इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलमी तौर से जो है आई है, और इसका मुकाबला करने के लिए हम और आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक वसात और एक हैसियत अदा की है। उसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इससे पहले वाले कलेक्टर साहब ने जो कमान संभाली, जिस तरीके की मदद यहाँ पे की, सुनील चौहान साहब के आने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में मजबूत तरीके से ऐसा बेहतरीन कंट्रोल आया है जिसके वजह से मिनटों के अंदर में मामला को जो है तो मजबूत किया जाता है। और हमारी जो बहन है घाटी के अंदर में, जब जब हमने घाटी के अंदर में मसला आया तो मैं लड़ना शुरू किया हमारे घर से, मगर देखो तुम ना उनके भाई को जाने देते हो, न बेटे को जाने देते हो, ना उसके किसी रिश्तेदार को जाने देते हैं। तो बोले मैडम बोले कि तुम जो तुम्हारी टीम है ये जो है किट है, ये किट जो है महानगर पालिका से एसपी कुमार पांडे साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी नुमाइंदगी के लिए पढ़ाकर मैडम को उन्होंने यहाँ पे भेजा है। वो शख्स इतना जबरदस्त तरीके से कांधे को कांधा लगा के इस कोविड की महामारी में हलीमुल्लाह कासमी साहब, इन चारों अधिकारियों ने ऐसी मदद की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने ये कपड़े पहनो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलती है आप अपने लोगों को अंदर भेजो। मैं खुद गया हूँ, मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे साथ काम करने वाले सभी जमीयत उलमा की पूरी
सियासी मैदान में काम करने वाले मेरे नगर सेवक मतीन, जफर, अशफाक, ये पूरे 8-10 नगर सेवकों ने जिस तरह से मैदान में उतर कर काम किया, जमीयत उलमा के कारकुन हमारा मुस्तफा, हमारे हाफिज साहब, जब आवाज और रात पैट कलेक्टर साहब ये आगे खड़े हो जाते हैं। हमने ये नहीं देखा ये कोविड हमको क्या नुकसान पहुंचाने वाला है, हमने कोई हाथों को जो है तो वो मरने में काम नहीं किया जो आप बाकी लेके फिर रहे। हमने तो अल्लाह का नाम लेके 2 रकात नमाज पढ़ी और हमने हमारे साथी ने कहा हवाले कर दो जिसमें अल्लाह के हाथ में अगर मौत देना होगी तो वो देगा, दुनिया की ताकत हमको मारेगी। और सुभान अल्लाह 3 टीमें बनी इस शहर के अंदर में, जो मैयत को चाहे मुसलमान की मैयत हो उसको खाना देके गुसल देके दफना के वापिस आ रही थी। अगर फिर करना था घर गैर मुस्लिम का उसको भी कांदा देके हमारे लोगों ने सत्ती के अंदर में ले जाके हिंदुओं को कांदा देकर वहां ले जाने का काम किया। वो मस्तान ग्रुप, वो PFI का ग्रुप और एक हमारे लड़का उसामा का KGN ग्रुप, ये तीनों ग्रुप ने औरंगाबाद शहर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर नहीं होगी कलेक्टर साहब, ऐसी तस्वीर औरंगाबाद शहर के अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता की तस्वीर अगर कोई है तो ये औरंगाबाद शहर के अंदर में है, इसको हम भूल के जो है तो चलने वाला नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर जो हालात आए और जिस तरीके का काम हुआ और अधिकारियों ने जो मदद की, माननीय टोपे साहब ने भी बार बार हमने फोन करने के बाद एडिटर मेडल साहब को फोन किया, पांडे साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब को फोन किया, उन्हें साहब उठा के लेके चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, पूरे 300-350 लोगों की टीम थी साहब। मैं फख्र के साथ बोलता हूँ ये दुआ, ये वजू और ये नमाज पढ़कर हमने जब इरादा किया था, खुदा की कसम एक भी आदमी को पॉजिटिव नहीं, एक आदमी हमारा एडमिट नहीं हुआ। तो आपस में बोलने लगे भाई ऐसा क्या बात है कि हम तो उनकी लाशें उठा के लेके आ रहे, उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो लिया के हम कर रहे साहब। उसके अलावा 1200 वेंटिलेटर हमारे पास, अब 700 रह गए। 1200 लोग घरों के अंदर में 80-90 के वाले एडिटर मैडम बहन हमने घरों में सेटल करने का काम किया। हमारे लगातार हमारे डॉक्टर नईम, डॉक्टर अकरम, डॉक्टर कुरैशी और हमारे यहाँ के डॉक्टर सूर्यवंशी साहब, ये डॉक्टर टाकरकर साहब, अरे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देख रहे थे, बोलते बोलो हमसे क्या होता, क्या चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार, आप करो मदद। हॉस्पिटलों में जगह है। डॉक्टर लुकना, डॉक्टर शोएब हाशमी, ऐसे ऐसे लोगों को। परसों हमारा एक नगर अध्यक्ष है माजलगांव का, अंबे जोगर की हॉस्पिटल में आखिरी में जब हमने एम्बुलेंस में डाल के लाए तो 25 ऑक्सीजन रहा। शोएब ने बोला जगह नहीं है लेकिन तुम लाओ, हम सब जगह करेंगे, एडजस्ट करेंगे। वेंटिलेटर में 15 दिन आदमी गया। वो डॉक्टर साहब का नाम क्या है जो आपके नहीं, वर्डसेकर डॉक्टर, क्या अल्लाह ताला, देखो वर्डसेकर है, एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, लेकिन क्या खिदमत शोएब हाशमी के पास उन्होंने किया, कई लोगों की जान बचाने का काम। अरे असली योद्धा तो ये लोग है भाई, ये डॉक्टर लोग हैं, ये नौजवान हैं जिन्होंने फाइटिंग की है। और इनकी नौजवानों की हिम्मत अफजाई करने के लिए जमीयत उलमा फख्र के साथ मौलाना कासमी साहब से इजाजत लेके कहा कि ये योद्धा, ये हमारे कलेक्टर सुनील चौहान साहब, एडिकर मैडम, ये हमारे पढ़ाकर मैडम योद्धा है। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, जो इंसानियत का जज्बा इनसे जो काम किया। औरंगाबाद को अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पट्टे के अंदर खास करके मैं बताना चाहता हूँ, आज कभी एक पेशेंट आता है तो कभी दूसरा पेशेंट आता है, तो कभी हफ्ते 10 दिन में रेगुलर तरीके से जो मौतें होती थी ऐसी। लेकिन हमारे डीसी के PI साहब पूछो, उनके हड्डी में एक दिन ऐसा आया, सिर्फ उनकी हड्डी में सिंगल डे में 38 मौतें हुई। बोले कदीर भाई डरो मत, वो दुनिया भर के उनको डिसीज मसले मसाइल गोलियां खा रहे, रात को उठ के आ जा रहे 2 बजे 3 बजे। वो PI गिरी हमारा, अरे गिरी साहब, बोले कुछ नहीं, बोलो हाजिर है, 3 बजे उठ के आए। सिलोट करता हूं ऐसी पुलिस को। चिरंजीवी प्रसाद साहब ने आदेश किया तुम कुछ भी करो, लोगों की जिंदगी बचना चाहिए। ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील चौहान साहब जब से आए पूरे जिले को ऐसा पकड़ के रखा, कदीर भाई बुलाओ, इनको बुलाओ, अंसारी साहब को बुलाओ, हमारे हाफिज साहब को बुलाओ,
इनको जिम्मेदारी दो, उनको जिम्मेदारी, तुम बोलो क्या हमको करना है, इसको बोलते हैं इंसानियत का जज्बा। यही कुरान ने हमको कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान को, अल्लाह के नबी को कहा, सारे नबियों ने जो ये काम किया, कहा अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मती उखरजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम लोगों को रफा आसानी के लिए पैदा किए गए हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म भी करते हो, बुराई से रोकते भी हो और अल्लाह पे ईमान भी रखते हो। लेकिन ईमान की बुनियाद देखिए, हमने अपनी आंखों से देखे कि तुम छोड़ दो अल्लाह की तरफ, अल्लाह तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा और भुलाएगा नहीं करेगा। अल्लाह का यकीन ये बुनियादी चीज है और ये इंसान को जिंदगी देता है और ऐसी चीजों पैदा कर देता है कि जिंदगी के अंदर में एक नई वजूद पैदा होता है और नया वजूद, ये हमारा ईमान का यकीन है। और ये यकीन देखो, मौत दुनिया के उतार चढ़ाव के अंदर में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो दिन इसीलिए आते हैं कि इंसान उस दिन को देख के अपनी मौत को याद करो। और सबसे सुकून का दिन अगर कोई रहने वाला है तो मौत की बात के कब्र की ही जिंदगी है जो सबसे सुकून रहेगी। लेकिन जिंदगी में अगर कोई माहौल को हमको जिंदा रखना है तो अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, उलटना उलट कर पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म करने का है बहाना, शाही बनाता नहीं आशियाना, शाही बनाता नहीं आशियाना। जय हिंद, जय भारत। हमें भी सब कुछ ये नया था और उस टाइम में सब हमारे साथ थे। जितने आगे क्वारंटाइन की बात हो, कलाराम के रोज कला सब हमारे पास आए, मैडम कितने हैं, जाना है तो मरकज का है, काफ़ी। अब तब रमज़ान का महीना भी था तो काफ़ी तकलीफ भी हुई, मगर सबने सहन किया, हमारा साथ दिया और ये सबके साथ के रहने से ये कोविड पैंडेमिक में हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये जो बात बोली है, जो मस्तान ग्रुप और हमारे साथ 3-4 ग्रुप जो है, जो डेड बॉडी है आखिरी में जो सब करना पड़ता है, ये कोविड का हम अलग से एनजीओ की तरफ से करते हैं, मगर उन्होंने इसमें ना धर्म देखा है, ना हिंदू देखा है, मुस्लिम देखा है, जो भी आए तो सबका क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। और कोई भी उसके मोहल्ला उन्होंने कभी भी हमसे नहीं मंगवाया है कि कॉर्पोरेशन हमको ये पे करे, वो पे करे। दिलो जान लगा के, रात कितना भी हो, कुछ भी हो, तो बहुत मन लगा के काम किया है। तो ये एक बहुत अपने पूरे अहमदाबाद शहर के लिए अभिमान की बात है कि हम सब एक साथ जो है, तो जब सब एक साथ काम है तो ये पैंडेमिक में हमको कुछ नहीं कर पाएगा, हम जरूर इस पे कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद। राज्यसभा सदस्य आदरणीय डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, हमारे दोस्त जिन्होंने अभी कम वक्त में बहुत सारा बता दिया क्या क्या काम किया, हमारे ऐसे कबीर मौलाना साहब और पूरे महाराष्ट्र से आने वाले मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, हमारे जिन्होंने 10-15 दिन से चल रहा था, हमारे खान साहब, हमारे शाह साहब, वो साहब बोले आपको प्रोग्राम लेना है और आप आना जरूरी है, बराबर है शाह साहब उस दिन। तो ठीक है, अभी जमाती उलमा की तरफ से, जमाती उलमा हिंद की तरफ से पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात, राजस्थान, गोवा तक जो भी अच्छे काम किए जाते हैं उस बारे में अभी बहुत अच्छी तरीके से सभी अपने मौलाना साहब ने बताया है। और ये भी उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी अगर चीज़ कौन-सी है तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप लोगों ने अभी ये कोरोना के वक्त में देखा। जब कोई देखता नहीं था, कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई ईसाई है या बाकी अदर्स कोई मजहब के है, हर आदमी यही सोचता था कि ये जो अलग सा संकट था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था पूरी दुनिया के ऊपर, तो ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देना, मदद करना, इसका उदाहरण अगर अच्छा उदाहरण नहीं होगा तो अपने औरंगाबाद शहर का उदाहरण। सभी डिपार्टमेंट के लोग, आम जनता, सभी संगठन जो भी हो, मजहबी संगठन हो या कोई अदर संगठन हो, जैसा कि पॉलिटिकल नहीं है जमाती हिंदू, तो भी मैंने खुद देखा है रात दिन ये लोगों ने, क्योंकि मैं मौलाना साहब आपको भी मालूम है, शाह साहब को भी मालूम है,
क्योंकि जब मैं जींसी पुलिस स्टेशन में आया, जब कुछ दिन हो गए थे, वो तो बहुत सारा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो भी छोटी छोटी गलियां बराबर है, और कुछ लोग कुछ एरिया करने लगे, मगर कुछ इतना कवरेज करे कि वहां पे गाड़ी भी नहीं जा सकती है, और लोक संख्या इतनी ज्यादा। तो ऐसे वक्त जब पहला स्टार्ट में अपना पानी के बम्बे के पास पहला पेशेंट मिला, मैंने ऊपर वाले से दुआ किया कि मेरा इलाका ऐसा है, ज्यादातर हमारे 70% मुस्लिम भाई वहां रहते हैं, और उसमें से हाई प्रोफाइल अच्छे लोग इलाका बहुत कम है, मगर काम करने वाले, हाथ पे गुजारा करने वाले लोग, मजदूरी मोल करने वाले लोग ये ज्यादा है। और ये लोगों को ऐसी मुसीबत के वक्त में, जैसा लॉकडाउन 1 महीना 2 महीने 3 4 महीने लॉकडाउन चला, और 10 दिन तो ऐसा स्ट्रिक्टली चला कि घर के बाहर भी निकलना मुश्किल था, और उसकी अमलबजावनी करना, उसका अमल करना, ये जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर थी। इसलिए हमने पुलिस स्टेशन का ऑफिस पुलिस स्टेशन बनने का, मैंने तो मेरा सेंटर रोशन में भी बना दिया था, वहां पे हम रात दिन वहीं बैठे थे, और वहां से भी पूरा मॉनिटर करते थे पूरा इलाका, और उसमें आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से साथ मिला। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर आदरणीय चिरंजीवी प्रसाद साहब अभी आईजी नागपुर बोल के गए हैं, चिरंजीवी प्रसाद साहब, डॉक्टर चौधरी साहब जब कलेक्टर अपने थे, अभी डॉक्टर चौहान साहब यहाँ आए हैं, उसके बाद अपने म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब, और अभी जो मैडम पांडे मैडम वगैरह, जो मेन जो रोल था पेशेंट को वहां तक पहुंचाने के बाद आगे की कार्रवाई जो ट्रीट करना, तो ये जैसा टीमवर्क इतना अच्छा रहा। और ये करते वक्त सीपी साहब का ये जब कहना रहता था कि आपने को लॉकडाउन तो सक्सेस करना ही है, मगर इंसानियत के नाते एक भी बच्चा बगैर दूध के बिना, या कोई भी इंसान, एक भी आदमी भूखा नहीं होना, इसके लिए क्या कर सकते हो उतना आप करो। ये और खुद सीपी साहब ने रात दिन एक कमिश्नर रहते हुए भी हर जगह कितने लेबर लोग बाहर से आए और कितने लोग यहाँ से अपने पास से चले गए, मगर एक भी आदमी कहीं भूखा सोया या भूखा रहा ऐसा नहीं हो गया। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी आवाम का। जैसी ये संगठन है, सोशल वर्क करने वाली संगठन है, कोई अकेले का काम नहीं रहता है, और ये खाली प्रशासन अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करने की कोशिश तो करता ही है, मगर जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलता, आम जनता का साथ नहीं मिलता, तब तक कौन सा भी जो उद्देश्य अपना सफल नहीं होता। और इसलिए औरंगाबाद की आम जनता ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। इसलिए ये कोरोना महामारी जो संसर्ग फैलने वाली बीमारी थी, इसलिए आपको सबसे कंट्रोल में ला सके। इसलिए और अपने पास तो लोगों में अवेयरनेस लाना ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरा जीसी का आपको सबको पता है, और मुझे मेरे सामने पहले सोचता था, मैं पहला पेशेंट जब आया मैं बोला अभी तो बहुत मुश्किल हो, अभी कैसा कंट्रोल करूं, मगर मैंने भी ऊपर वाले की दुआ से, अल्लाह ताला की दुआ से, हमने खुद की जान की परवाह न करके हुए रात ही रोड पर पैदल हर गली में गए, हर मोहल्ले में गए। बहुत सारे हमारा पीएस सिस्टम मोबाइल का कंटिन्यू चालू था कि भाइयों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क का यूज करो, और हाथ सैनिटाइज करो। जो भी WHO की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आते थे, ईमानदारी से हम करने की कोशिश की, और हम खाली करने से नहीं होता। आप जैसे लोग हैं, आप लोगों ने इसमें साथ दिया, इसलिए अपन ये कोरोना से फैलने वाली बीमारी कंट्रोल में ला सकते। वरिष्ठ अधिकारी उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, और आप लोगों का साथ हमें मिलता रहा। कुछ भी रहा, ये करते वक्त सबसे मेन बात थी कि लोग परेशान थे, लोग प्रतिनिधि हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप जैसे जहाँ मंच पर बैठे विराजमान, या आप लोगों का भी बड़ा हाथ उस पर रहता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा होता है उसको अगर बता दिए, लोग आपका मानते हैं, हमारा काम मानेंगे। वो तो बोलेंगे पुलिस वालों का काम ही, मगर आप अगर बोलते हैं तो उनके जहन में वो बात बैठती है, और उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और वैसा ही हुआ, टीम वर्क बोल के औरंगाबाद सिटी में बहुत अच्छी तरीके से काम रहा। इसीलिए मैं हमारे पत्रकार भाई है, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि रात दिन ये लोग रोड पर थे। और क्या सिचुएशन है,
लोगों तक पहुंचाना और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, जन जागृति पैदा करना और जितना हो सके उतना ये बीमारी जो है संसर्ग बढ़ने वाली कोरोना वायरस उसको कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और ये अपने सब लोगों ने चैलेंज उसको स्वीकार किया। और अभी मैंने अभी बताया मौलाना साहब ने कि GC का गया मेरे पास अभी तक सर माझ्याकडे आतापर्यंत 109 लोक आतापर्यंत माझ्याकडे पॉझिटिव्ह आले GC इलाक्यामध्ये आणि माझ्याकडे 130 लोक आतापर्यंत मरण पावलेले आहेत आणि आता फक्त 15 से 16 लोग सध्या ट्रीटमेंट में आए। अभी 15 से 16 लोग ही खाली मेरे पास अभी अंडर ट्रीटमेंट है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आप लोगों का साथ मिला और हमने भी ईमानदारी से मेहनत की। जब अभी ये जो बातें चले कि मजहब के ऊपर, मजहब वगैरह नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इंसानियत सबने बता दी, इसीलिए कोई देखता नहीं था। हॉस्पिटल में गए तो कोई पूछा नहीं ये किसका खून है, हिंदू का है या मुसलमान का है, कोई ईसाई का है। ये सबसे बड़ी बात। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। पुलिस का काम करते वक्त बाकी अदर डिपार्टमेंट सर्वे करना है तो लोग बोलते थे, दूसरा उनके दिमाग में था, वो लोगों को समझाना। कई पेशेंट नहीं जाता है, डॉक्टर ने आने का फोन आया, वहां जाके खुद लोगों को समझाना। हर बात जैसे अदर डिपार्टमेंट को भी कहीं प्रॉब्लम आता है, उन्होंने कॉल किया तो हालांकि पेशेंट को गाड़ी में बिठाए तक हमने पुलिस ने जान की परवाह न करते हुए काम किया और आप लोगों ने ये नवाजा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आगे चलकर आप लोग को बहुत सारे काम करना है। अभी भी 100% कोरोना कितना नहीं हुआ है, आगे भी आप लोग को ये अपना काम चालू रखना है। मैं आप सभी जमात हिंद उलमा के सभी मेंबरान और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाई, माननीय कलेक्टर साहब, डॉक्टर भारत कराड़ साहब और सामने बैठे सभी हमारे भाई बहना, सबका यहाँ पर तहे दिल से पुलिस प्रशासन की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ मेरे 2 बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।